faith. हमें विश्वास में चलना चाहिए। When David walked in faith, जब दाऊद विश्वास में चला, he overcome the greater mighty things than him. वो तो अपने से भी बड़े और सामर्थी पर विजयी हो गया, Easily overcome. आसानी से वो जयवंत हुआ। And when Samson walked in faith, जब शिमशोन विश्वास में चला, he could able to overcome lion. तो वो सिंह पर जयवंत हो सका। When Abraham walked in faith, जब अब्राहम विश्वास में चला, wonders happened. तो अद्भुत काम हुए। Oh, wonderful things will happen to you when you walk in faith. जब आप विश्वास में चलेंगे तो आपके साथ में अद्भुत काम होगा। Walking by faith. विश्वास से चलना। We should walk by faith, the Bible says. बाइबल कहती है कि हमें विश्वास से चलना चाहिए। When you start walking by faith in God, you shall conquer the fear. जब आप परमेश्वर में विश्वास रखकर चलते हैं तो आप डर पर जयवंत हो जाते हैं। Fear has the two meanings. डर के दो अर्थ होते हैं। What is F-E-A-R, fear? F-E-A-R, फियर का मतलब क्या है? डर का मतलब क्या The है? first meaning, सबसे पहला अर्थ है forget everything and run. सब कुछ भूल कर भाग जाएं। Second thing, दूसरी बात, face everything and rise. सबका सामना करके उभर कर आएं। When you get fear जब आप डर जाते हैं, or financial problem आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, or any physical problem, या कोई भी शारीरिक समस्या हो, any problems that you face, चाहे जिस किसी समस्या का सामना करते हैं, you know, different problems different people face. अलग अलग लोग अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं। Everybody will not face the same problem. सब एक ही समस्या का सामना नहीं करते हैं। Every house, every man, every woman has a different kinds of problem. हर एक घर में हर एक स्त्री और हर एक पुरुष की अलग अलग समस्याएं होती हैं। Now you have to face it. अभी आपको उसका सामना करना The है। fear has two meanings. The first meaning, forget everything and run away. डर के दो अर्थ है। इसमें पहला अर्थ है कि सब कुछ भूल कर भाग जाएं। That is not the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। But God has not given us the spirit of fear, but He gave us the spirit of Holy Spirit who gives you control. The second thing you need to do, face everything and rise up in Jesus' name. अब देखिए, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए सारी बातों का सामना करना है और हमें उभर कर आना है, ऊपर उठते चले 2 जाना Timothy है। chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 7 कहता है, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 1 Samuel chapter 17, whole chapter it says about David overcome bear and lion, even Goliath. पहला शमूएल अध्याय 17 ये पूरा बताता है कि कैसे दाऊद भालू, सिंह और गोलियत के ऊपर में विजयी हुआ था। Everybody are afraid of Goliath, but David never feared Goliath. सब लोग गोलियत से डर रहे थे, लेकिन दाऊद गोलियत से नहीं डरा। And David says, don't measure, don't count his height and weight. और दाऊद ने कहा कि उसके कद काठी या उसकी ऊंचाई को मत गिनो। I am looking at my God, He is so great, He is almighty. मैं अपने परमेश्वर को देखता हूं, वो तो इतना महान है, वो इतना सर्वसामर्थी परमेश्वर है। So David, in front of him there is a problem, but he did not look at the problem, but he looked at God who gives the power to overcome this problem. यानी दाऊद के सामने यहाँ पर बड़ी समस्या थी, लेकिन उसने समस्या को नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। Goliath, yes, he does have power. हाँ, गोलियत में सामर्थ तो है He ही। does have fully armored. उसके पास पूरे हथियार थे। He can kill David easily. वो दाऊद को आसानी से मार सकता था। But David says, my God is powerful than Goliath. लेकिन दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर गोलियत से भी ज्यादा सामर्थी I है। am serving such a great God. मैं ऐसे महान परमेश्वर की सेवा करता I हूँ। will overcome this Goliath. मैं इस गोलियत पर जयवंत हो जाऊंगा। The size of David is too small and his enemy is too tall. दाऊद का आकार तो बहुत छोटा था और उसका शत्रु तो बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था। David is too weak, but his enemy is too strong. दाऊद तो बहुत कमजोर था और उसका शत्रु बहुत ही बलवान था। And his enemy is fully trained and skilled. David was not trained, not skilled. दाऊद का शत्रु पूरी तरह से ट्रेन था और पूरी तरह से युद्ध कला जानता था, लेकिन दाऊद को युद्ध नहीं आता था, उसमें ट्रेन नहीं Who था। gave him this victory? लेकिन उसे ये विजय किसने दी है? First thing is boldness, because he has a boldness. He looking at God and said, God is with me. He will never allow me to fall. He will help me. He will strengthen me. He will stand beside me and he shall give me victory. सबसे पहले दाऊद का साहस था, उसका हियाव था।
उसने कहा कि परमेश्वर मुझे विजय देगा, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ में है, इसलिए वो मुझे विजयी करेगा। इस तरह से दाऊद का परमेश्वर में भरोसा था। If you have faith in God, अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखेंगे your problem may be like Goliath, तो शायद आपकी समस्या गोलियत जैसी हो, but you shall overcome. लेकिन आप जयवंत होंगे। Your problem is stronger than you. आपकी समस्या आपसे ज्यादा बलवान है, It may be taller than you. शायद वो आपसे ऊंची हो, It may be mighty than you. शायद वो आपसे सामर्थी हो, Don't afraid of that. तो उससे मत डरिए। Your God is greater than anybody in the world. आपका परमेश्वर इस संसार में बाकी सबसे बड़ा है। You may be thinking the cancer, everybody are afraid of the name of cancer. और देखिए, इन दिनों में कैंसर के नाम से सभी लोग डरते हैं। The cancer name has a frightening name. कैंसर का जो नाम है, यही तो डराने वाला नाम हो गया है। Irrespective of every religion, everybody are afraid of that. चाहे किसी भी आस्था के लोग हो, लोग कैंसर से But डरते हैं। we, children of God, we should say, my God's name is higher than any other name. लेकिन हम परमेश्वर की संतान, हमें कहना चाहिए कि मेरे परमेश्वर का नाम बाकी सारे नामों से ऊंचा My है। Lord Jesus' name is a name above all other names. The name of Jesus Christ. It is the greater name than any name on this earth. मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सबसे महान नाम है, सबसे ऊंचे पर रखा गया नाम है, और इस पृथ्वी पर के सभी नामों से वो नाम ऊंचा है। When you read Book of Acts chapter 4 verse 12, जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 पढ़ते हैं, name above all names, सभी नामों से ऊपर the श्रेष्ठ name of Jesus Christ. यीशु मसीह का नाम We है। are saved by that name. We are walking by faith through that name. हम उस नाम के द्वारा उद्धार पाए हैं, और उस नाम पर विश्वास करने से हम चलते हैं। Name of Jesus Christ is greater than cancer, greater than any disease, greater than anybody's name on this earth. It is the highest name in the world. It is above all other names. यीशु मसीह का नाम तो इस संसार में बाकी सभी नामों से श्रेष्ठ है। वो तो कैंसर के नाम से भी ऊंचा है, और बाकी जितने भी नाम हैं रोगों के, उनसे भी बड़ा यीशु का नाम है। When you walk in faith, what happens? The fear will run away. जब आप विश्वास में चलते हैं तो क्या होता है? डर भाग जाता है। That is what many people are afraid. Why these Christians, so much persecution is going on all around the world, but still they believe Bible, still they believe Jesus, still they go to church. How dare they are? और इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि पूरे संसार में मसीह लोगों को सताया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हैं? Why? क्यों? We don't have fear. हमारे अंदर डर नहीं We are है। not afraid of death. हम मृत्यु से नहीं डरते हैं। We are not afraid of Satan. हम शैतान से नहीं डरते हैं। We are not afraid of enemy. हम शत्रु से नहीं डरते हैं। We fear the Creator, God Almighty. हम तो केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ही भय मानते हैं। That is why we should walk in faith. और इसीलिए हमें विश्वास में चलना चाहिए। When David walked in faith, जब दाऊद विश्वास में चला, he overcome the greater mighty things than him. तो वो तो अपने से भी बड़े और सामर्थी पर विजयी हो गया। Easily overcome. वो बड़ी आसानी से जयवंत हुआ। And when Samson walked in faith, और जब शिमशोन विश्वास में चला, he could able to overcome lion. तो वो सिंह पर जयवंत हो सका। When Abraham walked in faith, जब अब्राहम विश्वास में चला, wonders happened. तो अद्भुत काम हुए। Oh, wonderful things will happen to you when you walk in faith. जब आप विश्वास में चलेंगे तो आपके साथ में अद्भुत काम होगा। Faith is a wonderful thing where you can receive mighty miracles from God. विश्वास तो बहुत ही अद्भुत बात है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से महान चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। That is why all children of God, we should walk in faith. Mark chapter 5 verse 34 and 35. Daughter, great is your faith. Receive your healing, Jesus said. मरकुस अध्याय 5 वचन 34 और 35 ये कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। इस तरह से यीशु ने कहा। Wonders happens when we walk in faith. जब हम विश्वास में चलते हैं तो अद्भुत काम होते हैं। Miracles happens when you walk in faith. जब आप विश्वास में चलते हैं तो चमत्कार होते हैं। When we start walking in faith, what is happening? Spiritual realm, angels of God will come and support us. जब हम विश्वास में चलते हैं तो क्या होता है? आत्मिक क्षेत्र में स्वर्गदूत आकर हमारी सहायता करते हैं। Holy Spirit of God will support us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। You cannot see them with your physical eyes, आप अपनी शारीरिक आंखों से उन्हें नहीं देख सकते but हैं, they are there. लेकिन वो तो वहां पर हैं। God will send His angels and help you. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर आपकी मदद करेगा। That's why Apostle Paul said, I have fought a good fight and I was keeping faith in my life. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा है, ऐसे वो कहता है। 2 Timothy chapter 4 verse 7. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 7। So there is a battlefield. Every day there is a battle for Christian life. और इसलिए मसीह जीवन के लिए हर एक दिन
युद्ध होता है। Some people says, no, brother, when 1994, then 1986, I got repented. I gave my heart to God. From that day onwards, no problems, no temptations, and anything. I was very holy and I was never tempted and nothing happened, nothing, no wrong at all, no evil dream, no evil word, no even a single lie in my life. I am living such a holy life and no disturbance in this world. I am living a holy life with God. If somebody said that is a big fat lie. कुछ लोग कहते हैं यीशु को मैंने स्वीकार किया, उसके बाद में कभी कोई परेशानी नहीं आई। ये तो मानो एक बहुत बड़ा झूठ है। You are in a battlefield every time temptations comes. और आप तो युद्ध भूमि में होते हैं और हर समय परीक्षाएं आती हैं। What does the Bible says? There is the temptations are coming and you have to overcome. बाइबल कहती है कि परीक्षाएं तो आएगी ही और आपको उस पर जयवंत होना है। Ephesians chapter 6 verse 12 to 17, till you go to heaven, till you die, these demons will be trying to attack you and tempt you to pull you down. इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 से 17 कहता है, जब तक कि आप स्वर्ग में न जाए ये दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध में हमला करेगी, आपकी परीक्षाएं करेगी, आपके विरुद्ध में आएगी। What we have to do? तो हमें क्या करना According चाहिए? to Ephesians chapter 6 verse 12 to 18, you have to fully armed, put the armor of God. इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 से 18 के अनुसार आपको परमेश्वर के हथियार पहन लेने होंगे। आपको ये हथियार पहनने होंगे। Who will be the fully armed person? ये ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसने पूरे हथियार पहने हैं? Those who are in army, who are in duty. जो लोग सेना में होते हैं, जो लोग ड्यूटी पर होते हैं। Policeman who is on duty. पुलिस वाले जो कि ड्यूटी पर होते हैं। Why? क्यों? Because they are ready to overcome enemies. क्योंकि वो तो हमेशा शत्रु पर जयवंत होने के लिए तैयार होते हैं To protect the people. कि लोगों की सुरक्षा करें। The same way, बिल्कुल उसी तरह से Bible says, बाइबल कहती है, till we go to heaven, जब तक कि हम स्वर्ग में न चले the जाएं, day you receive Jesus Christ, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, immediately fully put the armor of God. तुरंत ही आप परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लें। As long as we live on earth, we should have the armor of God. जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमें परमेश्वर के हथियार पहने रहना है। So when temptations comes, तो जब परीक्षाएं आती हैं, when the Satan sends the arrows upon you, जब शैतान आपके ऊपर अपने तीर छोड़ता है, you will have a doll of faith. तो आपके पास में विश्वास की ढाल होगी And doll of faith will put down all the arrows of devil. और विश्वास की ये ढाल शत्रु के सारे तीरों को नीचे गिरा देगी। 2 Timothy chapter 4 verse 7 says, Apostle Paul, yes, I fought a good fight. और दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 7 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ And I have kept the faith. और मैंने विश्वास को बनाए रखा है। So Apostle Paul also faced many temptations. इसका मतलब प्रेरित पौलुस ने भी बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया है। But nowadays some so-called self-righteous preacher says, I have no temptations. The day I got saved, 1961, 1973, 1992. They'll say so many stories, brother. Don't believe such people. लेकिन आजकल के खुद की धार्मिकता रखने वाले प्रचारक कहते हैं 1963 में, 1973 में, 1991 में मैंने उद्धार पाया, तब से कोई किसी भी तरह से मेरी परीक्षा नहीं हुई है, आप उस पर भरोसा मत They say कीजिए। we are so holy. वो कहते हैं कि हम तो इतने पवित्र हैं, We are really holy people. हम सच में बहुत पवित्र लोग हैं, We are not tempted. हमारी परीक्षा होती ही नहीं है। Brother, that is a big fat lie. मेरे भाइयों, वो तो बहुत बड़ा झूठ है। My Bible says मेरी बाइबल कहती है every day is a battle. हर एक दिन युद्ध होता है, You have to overcome. आपको जयवंत होना होगा, Temptations will come. परीक्षाएं आएगी, Trials will come. परखा जाना होगा, All kinds of evil things may come around you, but in the name of Jesus, through faith, you shall overcome it. हर एक तरह की बुरी बातें आपके विरुद्ध में आएगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम में विश्वास से आपको उस पर जयवंत होना है। Faith sees the invisible things. विश्वास तो अदृश्य चीजों को देख लेता है Faith believes the unbelievable things. और जिन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते उस पर विश्वास भरोसा करता है, And faith receives the impossible things. और असंभव बातों को विश्वास प्राप्त कर लेता है। That is what Jesus said. Walk in faith, have faith. और इसलिए यीशु ने कहा कि विश्वास में चले और विश्वास रखे। इस तरह से यीशु ने कहा है, Walk in faith, the power of God descends upon you. विश्वास में चलिए तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर कर आएगी। Walking in faith pleases God. हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945।
हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गा है। मंगलवार के दिन मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी। जाते वक्त मेरे अंदर भय था कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला। तो कुछ था जो बोल रहा था कि तुझे ये जॉब मिलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं सेलेक्ट हो गई। मैं केवल यही कह सकती हूँ कि ये मसीह के कारण मैं आशीष से पा रही हूँ। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आने से मैं महान आशीष पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आत्मिक ज्ञान हुआ, आत्मा में बलवंत हुई। हर तरह से मैं कह सकती हूँ ये केवल मसीह ही है जो मेरे जीवन को में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो गए, मुझे गर्भ धारण नहीं हुआ। प्रार्थना में आके पास्टर जी से प्रार्थना करवाने के बाद परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि प्रभु मुझे लड़का देंगे। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे लड़का दिया। मेरा नाम एस रत्नम है। मेरी शादी होकर 4 साल हो रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर सेंटर में 40 दिनों की उपवास प्रार्थना में आने के बाद सिस्टर साइला पॉल जी ने मेरे लिए प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे दर्शन दिखा के परमेश्वर ने मुझे गर्भफल दिया। अस्पताल में जाकर डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने स्कैनिंग निकालने के बाद कहा कि आपको 2 बच्चे हैं। ये मेरा 4था महीना है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य करने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम क्रिस्टीना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके हाई बीपी और शुगर दोनों हाई होके सीरियस हो गई थी। अस्पताल लेके जाने की परिस्थिति हो गई थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। स्टीफन पॉल भाई का प्रार्थना का तेल मेरे पास था। उसके बाद मैंने मम्मी को वो प्रार्थना का तेल लगाया। तेल लगा के मैंने कहा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, आप ही मेरी सहायता कीजिए। बोलने के बाद मैं उनको गांधी अस्पताल ले गई। मेरे रिश्तेदारों ने कहा, गांधी अस्पताल किस लिए? डॉक्टरों ने कहा था ना कि ये बहुत क्रिटिकल है, इसके लिए पैसे होने चाहिए। 1 रुपये भी खर्च किए बिना परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। 1 पैसे भी हम बिना खर्च करे हम यहाँ आए हैं। परमेश्वर ने मेरी माँ को संपूर्ण चंगाई दी है। बीपी शुगर सब नॉर्मल है। धन्यवाद यीशु। मेरा नाम वेरोनिका है। मैं टीचर हूँ। 1.5 साल से मुझे साइट की प्रॉब्लम है। मैं रीडिंग क्लासेस यूज करती थी। बाइबल पढ़ने में भी कष्ट होता था। मेरी आंखों को प्रभु ठीक करिए कहती थी। घड़ी में टाइम भी साफ नहीं दिखता था। तो अब प्रार्थना करते समय मैंने प्रार्थना करी तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, टाइम भी देख पा रही हूँ। तो अब मेरी घड़ी में 12:35 हुआ है। तो पहले देखने पर मुझे ऐसे देखना पड़ता था, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ पर खड़ी थी, तब मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब मैं आगे आई तो मैंने महसूस किया तो लगा कि यीशु प्रभु मुझे आशीषित कर रहे हैं। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं बहुत आनंदित हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरी जीभ घूमने लगी और मैं अनजान भाषा बोलने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलों के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। 1 महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादिल साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जी अन्ना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला रहा है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। 3 साल पहले मैं कुछ आवाज को सुना, पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं थे। इस प्रकार की आवाज मैं बार बार सुनता था और नरक जैसा मेरा हालत बन गया। मैं किसी से बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या के लिए तैयार हो गया।
मैंने कई सारे दवाई को इस्तेमाल किया, पर इसमें से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे हाथ में जो भी कुछ होता था मैं उसको फेंक देता था। मैं मेरे पड़ोसियों से झगड़ा करता था, मेरे पिता माताओं के साथ बात नहीं कर रहा था। इस प्रकार से मैं आत्महत्या के लिए कई बार कोशिश किया। मैं करीब 20 कलीसिया में गया, लेकिन मुझे कोई आजाद नहीं मिला, मुझे कुछ आराम नहीं मिला। पर अभी मुझे आराम मिल रहा है। आज परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया। मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ।